आज का जो हमारा पेरेंट कनेक्ट सीरीज है, एपिसोड नंबर 2 बियॉन्ड एकेडमिक्स, ये हमारा है लर्निंग फॉर लाइफ। ऐसी एकेडमिक स्किल्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और हमें डे टू डे लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाने में, कॉन्फिडेंट बनाने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं, जिन जो कि स्टेप बाय स्टेप अचीव की जाती है। और अगर कोई भी एक स्टेप मिस हो जाए तो हम अटक जाते हैं एक जगह पर। So what we will be discussing tomorrow is step-by-step approach to learn the academic skills like math, reading and writing and how they are beneficial for our children. आज हम जो बात करेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इन स्किल्स पर काम करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, आज केवल हम उनके बारे में बात करेंगे। कैसे करते हैं वो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। और मेनली हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक उस स्किल को लेकर जाते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं अब शेयर करूंगी अपनी स्क्रीन। बिफोर आई स्टार्ट द स्क्रीन, शेयर द स्क्रीन, जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ये कनेक्टिविटी का एक इनिशिएटिव है, पेरेंट कनेक्ट सीरीज, जो कि एवरी फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ हम करेंगे, जिसमें एक फ्री वेबिनार या वर्कशॉप होगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे नॉलेज शेयरिंग और अपना अभी तक हमने जैसे सीखा है टू हेल्प एंड गाइड द पेरेंट्स, ताकि वो अपने बच्चों को और अच्छे से सपोर्ट कर पाए और उनको हेल्प कर पाए। तो आज का जो एपिसोड 2 है, इट इज अबाउट learning for life and I will be sharing the screen now. Learning for life. Learning today, independent tomorrow. So, but we believe that whatever our children learn or they will learn, it should make them independent tomorrow. हम इस बात में विश्वास रखते हैं, आई थिंक आप सब भी इसी बात में विश्वास रखते हैं कि जो भी हम अपने बच्चों को आज सिखाएं, that should make them independent tomorrow. Whatever we are working on today, it should help them in their day-to-day life and practical learning, real life skills and independence. That is the goal of learning. And I myself is Vandana. I am a parent, special parent of Saksham, who is 18 years old, and I am an educator who has been working with special need teens and adults mainly for last 8 years. And with me is Monica ma'am. Monica ma'am is founder of Mindful Nurturing Academy, Lucknow. She is a senior special educator having more than 11 plus years of experience, and she is the program facilitator and mentor at Connectivity. So we both will be doing this session, and the first thing is why learning for life. क्यों जरूरत है लर्निंग फॉर लाइफ की, क्या पिलर्स होते हैं जिन पर हमें काम करना है और हमारे क्या स्टेप्स होंगे, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज लर्निंग फॉर लाइफ? Before I start, I will take a pause of 1 minute. I ask you, what is learning for life? आपके लिए क्या मतलब है learning for life का? Can you please type in the chat box? What do you think when I say learning for life? What is the first thing that comes into your mind? Child become independent in all the life skills. Like he should be independent for washroom and means the daily task, the routine task he can do by his own. So that is the independent life skill for me, because my son is of age 7 plus. And for elder ones, like you told, for the teenagers, it should be like that they should be independent for money handling and
and they should know how to, means the value the time. Yes, yes, So all exactly. this is So, learning for life skills that we use in day-to-day living that makes our children independent. Learning to be independent. Like these are the skills that are definitely needed for survival. अगर ये वाली skills नहीं है तो हम survive नहीं कर पाएंगे. ADL, shopping, communication skills that are required for life are the learning for life skills. I come back to my slide. Learning for life is about helping learners use reading, writing, mathematics, daily life skills, communication, everything, whatever we discussed, instead of learning for exams. There is two type of learning. One is academic learning, and there is another learning which is called learning for life, also called functional academics. It is the learning that is beyond exams, and children learn the skills that make them more confident, independent, and active participants at home, school, and community. That is learning for life. Now let's imagine this. A child can read a story, but when it comes to reading a timetable, he or she cannot. Any one of you can relate to this, that your child can read letters, alphabets, they can read the books. But when it comes to reading the labels or reading the washroom signs or reading the warning signs or expiry dates on medicines, then it becomes a challenge. Anyone of you can connect with this? Anyone? And my child can read the books, the academic books they can read, but they cannot understand what that means. Anyone? सबके बच्चे सब समझ रहे हैं? Yes? Okay. So imagine this, that a child can read a book, but when it comes to reading a timetable or reading his own schedule or reading the labels or reading the signs on the road, then it becomes a challenge, right? Child can write in sentences, but when it comes to filling a simple form at a railway station, they cannot. Yes, it happens. Yes, they don't know how to fill the form. Even if we talk about this, when it comes to filling the whenever we go for exams, there is an OMR sheet or the personal information sheet. That also becomes a challenge for that child when it comes to the functional writing, right? So the child can write, but when it comes to the functional use of that writing, they fail. A child can solve sums. Oh, you give him 5-digit addition, 5-digit multiplication. He will do in minutes. He will do in seconds. But when it comes to calculate the total bill of the shopping, then it becomes a challenge. Anyone whose child is very good with maths, but when it comes to use the math skills at shop or anybody or anywhere else, it becomes a challenge. Anyone here? You can give a thumbs up also. Yes. So child can read, but they cannot generalize the reading. They cannot comprehend. They can write, but when it comes to filling the bank form or filling the railway reservation form, or when it comes to filling the admission form, they need help. They can solve the sums, 5-6 digits of addition, subtraction, multiplication. They can do algebra, anything. But when it comes to apply mathematics in day-to-day life, then it is a problem. It is a challenge. It happens with many of us, right? This is why learning for life matters. And if this is happening to us, then learning for life matters a lot. And we need to focus on learning for life. There are 6 pillars for learning for life. Everyday reading, where
they can read the signs, labels, schedules, instructions, etc. Everyday math, where they can use the numbers they have learned in real life with money, measurement, time, problem solving. Communication. Communication is a big challenge for our children, and communication is one of a skill that needs to be learned, for especially for our children. So expressing their needs, it can be anyway. It can be in writing, it can be in typing, it can be using the AAC, but communication is a needed skill for life. And writing also is a mode of communication, so it will help them express themselves. Daily living skills, we discussed that taking care of their self, cooking, doing laundry, making bed. These are the skills that are learning for life skills. Communication skills, community skills, also called social skills, interacting with people politely, being gentle in the in a gathering, and consent needed. Don't touch anybody without their consent. So consent concept is there. They know private and public things. That is very important. So these are the community skills or social skills, the rules of the society. That is also very important for learning of life. And the other, which is in this era, the life is not possible without digital skills. So digital skills, using technology safely and wisely for work and everyday tasks, it matters a lot. So these are the 6 main pillars which are required for learning for life: everyday writing, maths, communication and writing, everyday reading, daily ADLs, social skills and digital skills. Must skills for everybody to learn for life. These 6 pillars work together to build skills for greater independence and a bright future. So ये तो हमारी skills हो गई जो हमें चाहिए एक इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए, एक कॉन्फिडेंट लाइफ के लिए. लेकिन लर्निंग होती कैसे है? So today we are not going to discuss that how these skills are taught or how to work on those skills, but what we are going to do, and we are not going to take 6 pillars together because that is going to take a long. We will go step by step. So today we are taking everyday math, everyday reading and everyday writing. And we will be discussing the steps needed to teach that skills. How to do it and how to achieve the independence, that comes later on. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो स्टेप्स कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम ये इंडिपेंडेंस अचीव करेंगे, और हम केवल 3 पिलर्स की बात करेंगे आज: एवरीडे मैथ, एवरीडे रीडिंग एंड एवरीडे राइटिंग. अब लर्निंग होती कैसे? लर्निंग प्रोग्रेशन. हाउ डज लर्निंग हैपन? एनीबॉडी हु वांट्स टू आंसर दिस? लर्निंग का प्रोग्रेशन कैसे होता है? कैसे लर्निंग आगे जाती है? कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? Anybody wants to answer that question? Progression for learning. Anyone who would like to talk about it? I think मैम जितना हम डे टू डे नीड का या जो भी हमें सिखा रहे हैं बच्चे को, उसका जितना हम उसे रियल लाइफ में सिचुएशन बेस्ड एक्सपीरियंस देंगे, उतना बेटर वो गेन करेंगे. Yes, exactly. So let's see how the progression. I will go very simple. आज मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बात करूंगी. लर्निंग होती कैसे है? पहले हम चीजें सीखते हैं. पहले आप सिखाते हो ना क्या सिखाना है, चाहे वो ADL है, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो एकेडमिक स्किल्स है. सबसे पहले हम लर्न करते हैं उसको, न्यू स्किल्स, और अंडरस्टैंड करते हैं उसके बेसिक्स. पहला स्टेप. देन नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस. Once we learn it, we practice it regularly to build understanding and confidence. आपने मान लो, अगर मैं academic terms में बात करूं, आपने addition सिखाया अपने बच्चे को. After that, you need a lot of practice to make your child more confident about addition, right? That is the next step.
आपने ब्रश सिखाया, ब्रशिंग करना सिखाया अपने बच्चे को एडीएल में, ब्रश पकड़ना सिखाया. Next step will be practicing that. So it needs a lot of practice. So first thing in learning progression is learn. Then next is practice. Practice a lot. बार बार हम उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं. Then apply that skill in the real life situation. जैसे डॉक्टर आकांक्षा ने कहा, हमें पहले हमने सीखा, फिर हमने प्रैक्टिस किया, and now we will be applying those skills. So मैंने मनी सीखा, मनी आइडेंटिफाई करना सीखा, फिर मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की मनी के साथ, and then I will go to a real environment and I will practice, I will apply the skills that I have learned into real life situation, and then comes the independence. And when we keep doing this, then we come at a stage where we become independent, and it applies to all the skills we learn. It can be reading, it can be writing, it can be ADL, it can be communication, any skill we learn in these 4 steps. First is we learn, then we practice, then we apply it, and then we become independent. Everybody agree with this? And these are the 4 progression steps for learning. तो ये 4 steps होते हैं learning के लिए. पहले learning, फिर practice, फिर application, फिर independence. With the right support at each steps, learner move from learning a skill to living it every day. अगर हम ठीक से practice करते रहेंगे और support देते रहेंगे अपने बच्चों को, then they come from step 1 to step 4. And if we skip, आज हमने सिखा दिया, ओके, मैंने तो उसको ब्रशिंग करना सिखा दिया आज. Today we worked on brushing teeth, and after 1 month I remembered that 1 महीना पहले मैंने ब्रशिंग सिखाया था, आज मैं फिर से करा लूं. प्रैक्टिस नहीं किया, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की, तो अगर आपने सेकंड स्टेप स्किप कर दिया तो आप थर्ड और फोर्थ तक कभी आओगे ही नहीं. यू विल ऑलवेज रिमेन एट स्टेप नंबर 1, लर्निंग, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन एंड इंडिपेंडेंस. और जब भी हम अपनी कम्युनिटी में अपने स्पेशल नीड पेरेंट्स के साथ बात करते हैं तो हमें ना 2 चीजें सभी लोग बोलते हैं, consistency and patience. Consistency and patience. Why? Because for others it may be 10 times of practice, and for us it might be 100 times of practice. That's why we need lots of patience and consistency. तो अगर आपने लर्निंग किया लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया, प्रैक्टिस किया लेकिन अप्लाई नहीं किया, तो आप इंडिपेंडेंस पर नहीं पहुंच पाओगे. इसलिए हर एक स्टेप जरूरी होता है. every step is important and every step matters a lot. तो हम इसी को हम बेस लेकर चलेंगे. ये 4 स्टेप्स आप याद रखिएगा. प्लीज रिमेम्बर these 4 steps and we will work around these 4 steps only. And I'm going to talk about everyday math now. Everyday math, building number skills for everyday independence. From numbers to life skills, building confidence one step at a time. So everyday math में कौन से steps होंगे? Maths मतलब everyday math. I'm not talking about algebra, geometry or complex academic math. I'm not talking about the math which is taught at school. I am talking about the math we do every day, right? So everyday math में कौन से 4 steps हैं जो हमें ध्यान रखने हैं? First step is understanding numbers. अंडरस्टैंडिंग नंबर्स. अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाके शॉपिंग करे, अपना चेंज कैलकुलेट करे, अपना अच्छे से पैसे दे और इंडिपेंडेंट बने, तो हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे. अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, फर्स्ट थिंग वी नीड टू टीच देम इज अंडरस्टैंडिंग नंबर्स. देन कम्स performing calculations, using math in everyday life, and then solving everyday problems, making everyday decisions. Understanding numbers, performing calculation, using math in everyday life, and making everyday decisions. अब अंडरस्टैंडिंग नंबर्स की जब बात आती है तो इट इज नॉट अबाउट कि हमें 1 2 3 सिखा दिया तो हो गया. नहीं,
एवरीडे नंबर्स के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, वो भी करने जरूरी होते हैं। तो अगर हमने उनमें से कोई स्टेप मिस कर दिया तो हमें कैलकुलेशन करना नहीं आएगा। कैलकुलेशन में भी स्टेप्स रहते हैं, अगर वो नहीं किए तो एवरीडे में हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स गो फर्दर एंड गो फॉर स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग नंबर्स। अंडरस्टैंडिंग नंबर्स जैसे मैंने बोला कि इट इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट आइडेंटिफाइंग द नंबर्स, इट इज अबाउट recognize the numbers, identify the numbers, counting, which we call number value, number value, understand the quantity. If mummy says give me 2 apples, if I go somewhere and somebody says give me 5 pencils, I need to understand what is 5. I need to understand the quantity. So number identification, counting objects, understand quantity, then comparing more, less, equal, big, small, these all come under stage 1. So these we also call pre-math concepts. More, less, equal, big, small. मुझे बड़ा वाला दे दीजिए, बड़ा वाला वाटरमेलन दे दीजिए, मुझे छोटी वाली इरेजर चाहिए, मुझे बड़ी वाली इरेजर नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कैसे आएंगे, ये भी हमें सिखाने पड़ेंगे ना। दीज आर प्री-मैथ कॉन्सेप्ट्स। नंबर सेंस, पैटर्न्स, ऑर्डरिंग, ग्रुपिंग, ये बहुत जरूरी होता है एंड इट कम्स अंडर स्टेज 1. देन बेसिक ऑपरेशन, अभी हम बिल्कुल कैलकुलेशंस पर नहीं गए, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एडिशन मींस, व्हाट सब्ट्रैक्शन मींस, that kind of like addition is when we add two, like 2 and 2 makes 4. So when we teach them using objects, that is teaching the concept of addition, teaching the concept of subtraction, that comes under stage 1. So stage 1 में number recognition, comparing number sense, basic operation. अगर आपने ये step by step follow करेंगे तब आता है stage 2. ये हमारा stage 1 है जहाँ पर हम number value तब नेक्स्ट स्टेज आता है स्टेज 2. स्टेज 2 में आता है कैलकुलेशन परफॉर्म करना। कैलकुलेशन जिसमें हम कैरी ओवर सिखाते हैं, एडिशन, बोरो सिखाते हैं, कैरी ओवर सिखाते हैं, प्लेस वैल्यू सिखाते हैं, कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। तो अभी हमने पहले नंबर का अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है, और उससे पहले हमें वो कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत जरूरी होता है। एडिशन का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, ये सिखाना बहुत जरूरी है, राइट? अगर वो पता ही नहीं होगा देन हाउ विल दे डू इट? So stage 2 is performing calculation, addition, subtraction, multiplication, division. यहाँ पर भी हम एक गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, हम usually give addition and subtraction as sums, like we will not 28 plus 47, but what we should concentrate more is on the word problems. हमारे बच्चे लिखा हुआ 47 plus 28 कर लेंगे, but when it comes to that I have 48 toffees and mummy gives me 27 more, how many total I have, then it becomes very difficult for them. So जब भी आप कैलकुलेशन करें, वर्ड प्रॉब्लम्स को साथ में रख के करें। कैलकुलेशन सिखा रहे हैं तो साथ साथ वर्ड प्रॉब्लम्स भी काम करते हैं और ऑब्जेक्ट्स के साथ सिखाएं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 25 plus 18, तो विजुअल्स आर वेरी, do with visuals, use lots of visual, ये बहुत जरूरी रहता है। Stage 2 is performing calculation. Then once my child has understood the number concept, then they have understood the calculation. अब मेरा बच्चा जो है वो नंबर्स को समझने लगा है, प्री मैथ के कॉन्सेप्ट उसको आ गए हैं। अब आता है एवरीडे में मैथ को यूज करना। एवरीडे मैथ में हमें पहले
उसको अपने साथ प्रैक्टिस कराना है। मेरे बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आई जस्ट गो डायरेक्टली टू द शॉप एंड टेल माई चाइल्ड कि अब करके दिखाओ, नहीं, पहले हमें अपने साथ कराना है। तो अब हमने जो भी सीखा उसको अप्लाई करना शुरू किया है, जिससे हमें मिलता है एप्लीकेशन, अप्लाई करना। स्टेज 3, फर्स्ट इज लर्निंग, then comes practice, then applying it to the everyday life, and then comes the independence. मनी, तो आप काउंटिंग मनी, गिविंग चेंज, कंपेयरिंग प्राइसेस, ये सब एवरीडे लाइफ में करना शुरू कर देंगे। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले टाइम, डेली रूटीन्स, बस ट्रेन टाइम टेबल्स, अपॉइंटमेंट, पहले सब आपकी हेल्प से होगा, एंड देन विल कम इंडिपेंडेंस। मेजरिंग इंग्रेडिएंट्स, वेइंग आइटम्स, मेजरिंग लेंथ, कैपेसिटी, ये सब क्या हो गया, एवरीडे वाला मैथ हो गया। और कैलेंडर हो गया, बर्थडे, मैरिज, हॉलीडेज, डॉक्टर मीट्स। तो अब हम अपने बच्चों के साथ मनी, टाइम, मेजरमेंट, कैलेंडर एवरीडे यूज करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने पहले के 2 स्टेजेस कर लिए। ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि कैसे हम काम करेंगे एवरीडे, उनको प्रैक्टिस कराएंगे ताकि अब वो फाइनली रेडी हो जाए एवरीडे डिसीजन के लिए। तो अब उनको पता होना चाहिए कि जब मैं शॉपिंग करने गया तो क्या मेरे पास पैसे हैं जिससे मैं सामान खरीद सकूं, इतने पैसे हैं। कंपेयर प्राइस, चेक ऑफर्स, कैलकुलेट टोटल, स्टे विद इन बजट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मैं कुकिंग कर रहा हूँ तो कितना टाइम लगेगा उस कुकिंग में। विच ऑप्शन इज बेटर, मेरे को कौन सी जगह से सामान खरीदना चाहिए, कहाँ पर सस्ता मिल रहा है, कहाँ पर महंगा मिल रहा है, मुझे कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है। मेरी बस 4 बजे सुबह 4 बजे है, तो मुझे घर से कितने बजे निकलना चाहिए, मुझे कितने बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इस तरह के एवरीडे डिसीजन लेने के लिए हमें सारी स्टेजेस को पार करना होता है, एंड देन कम्स दिस इंडिपेंडेंस। सवेरे आइए ना, लेके चल जाइए। मैरी गोल्ड एक पैकेट जाते हैं ना, 9:30 बजे आइएगा, सब कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, दाल दे फिर तो नहीं है। मैरी गोल्ड 38 का और ये 50 का कितना हुआ? दाल बनेगा सवेरे, आइए सवेरे 8:30 बजे आइए। हाँ, 8:30 बजे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने स्टेज बाय स्टेज अपने बच्चे को नंबर सिखाया, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सिखाया, जब हमने उसको एक एक करके उसकी प्रैक्टिस की, बार बार उसको अप्लाई करना सिखाया, अपने साथ प्रैक्टिस करवाई, देन the child will be able to go to shop and do independent shopping. That is how they will become independent, step by step. अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की, अगर हमने कोई भी स्टेप मिस किया, तो वो इंडिपेंडेंस हमारा अचीव होने में ज्यादा टाइम भी लगेगा, और हो सकता है हम प्रॉम्प्टेड ही रह जाए। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, और हर एक स्टेज को क्रॉस करते हुए चलना। तो अभी मैं मैथ्स के बारे में 4 चीजें मैंने बता दी आपको, मैथ्स कैसे कराते हैं। नाउ आई विल आस्क मोनिका मैम टू टेक ओवर एंड शी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीडे राइटिंग। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम मोनिका है। जैसा कि अभी मैम ने हमको सबको एक्सप्लेन किया कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो एकेडमिक हमारा बच्चा कर रहा है उसको हम फंक्शनली डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं स्टेप्स ऑफ टीचिंग, कि जब हम टीच कर रहे हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, और अगर हमने उसमें से स्टेप को स्किप किया या जंप करने की कोशिश करी तो हम हमेशा पहले ही स्टेप पे रह जाएंगे। अगर हमने दूसरा स्टेप जंप किया तो हम तीसरे पे कभी नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो हमें हर चीज को स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ाना है।
सो अब मैं अभी बात करने वाली हूँ एवरीडे राइटिंग की। जब राइटिंग पे हम काम करना शुरू करते हैं तो जैसा कि हम सबको पता है कि सबसे पहले हम ट्रेसिंग सिखाते हैं, लेटर फॉर्मेशन पे काम करना शुरू करते हैं। मैम पीपीटी आप ये आगे बढ़ाएंगे? यस। सो आज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ राइटिंग स्किल्स पर। तो राइटिंग स्किल की भी कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि मैथ्स की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, और स्टेप बाय स्टेप जब हम उन स्टेजेस पे काम करते हैं तभी हम फंक्शनल मैथ्स को डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करना है उस पे आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह से हम बात करने वाले हैं कि राइटिंग स्किल, फंक्शनली हमें चीजों को लिखना आना, पैराग्राफ राइटिंग तक अगर हमें पहुंचना है तो उसके लिए जो सबसे पहली स्टेज है वो प्री राइटिंग स्किल्स है। प्री राइटिंग स्किल बहुत ही बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन है राइटिंग स्किल का, जिस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। और इनके जो फोकस एरियाज होते हैं वो है फाइन मोटर, हैंड स्ट्रेंथ, पिंसर ग्रिप, पेंसिल ग्रिप, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड बाइलेटरल कोऑर्डिनेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे एरियाज। नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। फाइन मोटर स्किल्स में हम सबको पता है कि हम इस पे हमेशा से काम करते रहते हैं, हमें सारी चीजें पता भी होती हैं कि फाइन मोटर स्किल्स जिसमें हमारी हैंड की स्मॉल मसल्स जो होती हैं उन पे हम काम कर सकें, जैसे कि प्ले डो से काम कराया, थेरापुट्टी से काम कराया, हैंड स्ट्रेंथ जिससे हमारे हाथ की स्ट्रेंथ इनहेंस हो, ऐसी एक्सरसाइजेस, कोई चीज स्क्वीज कराई, बॉल स्क्वीज कराई, स्क्वीजी बॉल्स होती हैं, थेरापुट्टी होती है, उन्हें स्क्वीज कराना, पिंसर ग्रिप जो हमारी पेंसिल की ग्रिप होती है, 3 फिंगर्स की ग्रिप, उन पर काम करना, ट्रेसिंग लाइंस एंड शेप, ये भी हमारा प्री राइटिंग स्किल में आता है कि हम लाइंस को ट्रेस करना सिखा रहे हैं बच्चे को। सही सर्कल अगर ट्रेस कर रहा है बच्चा तो वो इस तरह से ही ट्रेस करे, वो उल्टा ट्रेस ना करे। ऐसी चीजों पर जब हम बेसिक काम करते हैं जो आगे चल के राइटिंग स्किल को और बेटर बनाने में हेल्प करती है। इसी तरह बाइलेटरल कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज, 2 हाथों से काम जो हम करते हैं, जैसे टीयर पेपर करना है, बटन लगाना है, हेयर क्लिप करना है, ऐसी एक्टिविटीज जिनमें 2 हाथों का यूज होता है। तो बेसिक राइटिंग स्किल जब हम फाउंडेशन पे होते हैं, स्टेज 1 पे होते हैं, तो हमें इन एरियाज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है कि क्या मेरे बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स, पिंसर ग्रिप, टीयरिंग, बाइलेटरल एक्टिविटीज, हैंड स्ट्रेंथ, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, इस पर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है कि क्या वो इन एक्टिविटीज को प्रॉपरली कर पा रहे हैं। तो इनको सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इस स्टेज को स्किप किया और हम डायरेक्ट हमने हफ्ते 10 दिन ट्रेसिंग कराया और स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, और डायरेक्ट हम अल्फाबेट्स और नंबर्स पर जंप कर गए, तो वो अल्फाबेट नंबर सीख तो जाएंगे, लेकिन जब उन्हें रियल लाइफ में लिखना होगा, फिर वो लाइन स्पेसिंग की प्रॉब्लम, कि वो लाइन में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, लाइन से बाहर तो उनका कॉन्सेप्ट जा रहा होता है, प्रॉपर लेटर एक जैसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, इन सारी चीजों की डिफिकल्टी का सामना हमको करना पड़ सकता है। नेक्स्ट मैम। यहाँ पे फाइन मोटर स्किल साथ में बाइलेटरल कोऑर्डिनेशन, दोनों हाथों से एक्टिविटी हो रही है, तो है ही, पिंसर ग्रिप का यूज भी हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि सारी एक्टिविटीज हम टेबल टॉप पे कराएं। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको अगर हम प्रॉपरली प्लान करें तो उसमें एक साथ हमारे 3-4 गोल हम उसमें अचीव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जो हमारा मिड लाइन है वो क्रॉसिंग एक्टिविटी कर रहा है। उसने इधर से कॉइन उठाया, इस तरफ डाला, इधर से उठाया, इस तरफ डाला, हमारी मिड लाइन को वो क्रॉस कर रहा है। बाइलेटरल मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज, इन सारी चीजों पे हमें स्टेज 1 पे बहुत सारा काम करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ना। नेक्स्ट स्टेज 2 आती है राइटिंग के लिए, लेटर फॉर्मेशन। जब हमने फाइन मोटर पर काम कर लिया, हैंड स्ट्रेंथ पर काम कर लिया, बाइलेटरल एक्टिविटीज हमने बहुत सारी बच्चे को एक्सप्लोर करने को दी, उसके बाद हमारा लेटर फॉर्मेशन आता है, लर्निंग टू राइट। अब यहाँ से मेरा बच्चा लिखना सीख रहा है। चिल्ड्रन बिगिन राइटिंग लेटर्स एंड नंबर्स विथ इंक्रीजिंग कंट्रोल एंड एक्यूरेसी। इसमें हमारा जो फोकस है कि हम उनको लेटर तो सिखाएं, नंबर तो सिखाएं, साथ में हमारा जो मेन फोकस होगा इस एरिया का वो होगा उनके हाथ के कंट्रोल पर और एक्यूरेसी पर। नेक्स्ट, एक्यूरेसी क्या
कि क्या बच्चे का फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं, और कंट्रोल, क्या अगर मैं उसको इतना बड़ा लेटर बनाना सिखा रही हूँ तो धीरे धीरे मैं उस लेटर का साइज छोटा करती चली जाऊं ताकि वो विद इन लाइन लिखना सीख सके। तो इसमें जो फोकस एरियाज हैं वो लेटर फॉर्मेशन, नंबर फॉर्मेशन, नेम राइटिंग, कॉपिंग लेटर, राइटिंग विद इन लाइन्स और पेंसिल कंट्रोल है। तो उसके लिए हम सबसे पहले पैटर्न्स तो बनवाते ही हैं, डिफरेंट पैटर्न्स। पहले हम दूर दूर पैटर्न्स बनवा सकते हैं, उसके बाद हम कनेक्टेड, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैटर्न ड्राइंग जो है कनेक्टेड पैटर्न्स की है। कनेक्टेड पैटर्न्स बनवाने से हमको क्या हेल्प मिलती है कि हमारे जो हाथ का फ्लो है वो बढ़ता है, हमारे जो कर्व की फॉर्मेशन है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से बच्चे को रनिंग लेटर्स लिखने में ईज होता है। जब आगे चल के हम स्मॉल अल्फाबेट में पूरा सेंटेंस लिखते हैं तो वो सब रनिंग लेटर में कर्व्स होते हैं। तो अगर हम बहुत ज्यादा पैटर्न ड्राइंग्स पे और जो कर्व ड्राइंग्स हैं उन पे फोकस करेंगे तो उनको आगे डे टू डे लाइफ में जब वो राइटिंग करेंगे तो उन्हें लिखने में ईज होगा। लेटर फॉर्मेशन, करेक्ट फॉर्मेशन, अगर लेटर की स्टार्टिंग ऊपर से हो रही है तो वो ऊपर से ही करनी है। ए जो है वो हमेशा ऊपर के डॉट से स्टार्ट होकर ही नीचे जाएगा, नीचे से हम ऐसे करके माउंटेन की तरह ए नहीं बना सकते हैं। तो हमें लेटर फॉर्मेशन पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना है कि मेरा बच्चा करेक्टली लेटर फॉर्म कर रहा है कि नहीं। सेकेंड स्टेज में हमको इन दो चीजों पे बहुत, कंट्रोल एंड एक्यूरेसी, क्या वो कंट्रोल के साथ राइटिंग कर रहा है और एक्यूरेसी के साथ बना रहा है, जो नंबर्स बना रहा है वो एक्यूरेट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। यहाँ पे बच्चा विद इन लाइन्स लिख रहा है और डॉट्स के ऊपर लिख रहा है, बट टीचर जो है वो ये ध्यान दे रही है कि जो लेटर का फॉर्मेशन है वो करेक्ट हो। अगर स्मॉल ई है तो पहले अंदर से हम स्टार्ट करेंगे उसके सर्कल को, उसके बाद ही हम ई बनाएंगे। ये बच्चा पहले बनाता था ई को सी बनाता था और उसके ऊपर गोला ऐसे लटका देता था, मतलब सी बना करके हाथ उठाता था और गोला ऊपर से लगाता था, सर्कल जो है वो ऊपर से लगा दिया तो स्मॉल ई बन गया। लेकिन हमें इन चीजों पर ध्यान देना है कि जो फॉर्मेशन है वो करेक्ट हो। प्रैक्टिस से बार बार प्रैक्टिस से अब ये बच्ची जो है वो इतना लिख पाती है कि इसने अंदर से सर्कल स्टार्ट किया और पूरे सी को कवर करते हुए ई को बना दिया, सेमी सर्कल को कवर करते हुए। तो इन चीजों पे फोकस करना है, फॉर्मेशन पे। नेक्स्ट स्टेज आती है, जब हम दो स्टेजेस पार कर लेते हैं तो थर्ड स्टेज हमारी वर्ड एंड सेंटेंस राइटिंग पर आती है। यहाँ पर अब हमारा बच्चा अपने बच्चे को हम आइडियाज और उसके थॉट्स को एक्सप्रेस करना और लिखना पर फोकस करते हैं, सिखाते हैं। चिल्ड्रन यूज राइटिंग टू कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स एंड सिंपल सेंटेंस। ये उनका एक टूल है, राइटिंग उनके लिए एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है कि वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को लिख कर एक्सप्रेस कर सकें। सो अगर हम स्टेप बाय स्टेप राइटिंग पर काम करते हैं और उनको ये एक इतना बड़ा गिफ्ट उनके लिए हो सकता है कि वो अपनी बातों को जो बोलकर नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जो शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, वो लिख कर एक्सप्रेस कर सके। इसके लिए जो थर्ड स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनकी वोकैबुलरी बिल्डिंग पर ध्यान दें। डे टू डे लाइफ में जो चीजें वो देख रहे हैं उन वर्ड्स को लिखना सिखाएं। बेड है, बॉल है, वो क्रिकेट खेल रहा है, बैट है, साइकिल चला रहा है, साइकिल है, बोल में खाना खा रहा है, प्लेट में खाना खा रहा है ना, पैन में चाय बन रही है, जग से पानी डाला जा रहा है। इन चीजों का आइडेंटिफिकेशन तो हमने बहुत पहले किया, लेकिन जब हम राइटिंग की स्टेज पे आए तो उन चीजों की वोकैबुलरी बिल्ड करना कि वो वर्ड्स क्या हैं और उनको लिखा कैसे जाता है, उनकी स्पेलिंग्स क्या होती हैं, उन स्पेलिंग्स पर फोकस करना। इसके बाद सेंटेंस में कैसे डलना, आई सी दिस, आई लाइक दिस, आई डू दिस, बहुत सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस को फॉर्म करना सिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। ठीक, हम साइट वर्ड्स सिखा सकते हैं सो दैट वो साइट वर्ड्स की हेल्प से और फोनिक साउंड्स की हेल्प से एक सेंटेंस बना सके। उनको दिस सिखा दिया, इस सिखा दिया, ए सिखा दिया साइट वर्ड की तरह, और सामने एक बॉल की पिक्चर रख दी सो दैट वो इंडिपेंडेंटली उस सेंटेंस को लिख सके और बता सके, पढ़ भी सके। रीडिंग पे अभी हम बात करेंगे, अभी हम राइटिंग पे बात कर रहे हैं। सो अपने एक्सपीरियंस को वो कैसे शेयर करें, पैराग्राफ राइटिंग कैसे करें, पिक्चर्स की हेल्प से हम पैराग्राफ राइटिंग पर फोकस करा सकते हैं कि फैमिली है, हमने एक मैप जैसा बना दिया कि बीच में फैमिली के बारे में आपको लिखना है, फैमिली में कौन कौन है, हु, वेयर,
व्हेन, ये जो हमारे 5 W है और एक H है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, है ना, हाउ एंड H फॉर हाउ, ये सारी चीजों को मिलाकर हम पैराग्राफ राइटिंग लिखा सकते हैं। मान लीजिए हमको कैट के ऊपर लिखना है, फेवरेट पेट के ऊपर लिखना है, तो हमने टेम्पलेट्स बना दिए। व्हाट के आगे बच्चे ने लिखा माय फेवरेट पेट, हेडिंग है व्हाट डॉग, व्हाई जिस भी रीजन से वो पसंद करता है, क्यूट, है ना। सो हम सिंपल एक एक वर्ड से पहले पैराग्राफ को जनरेट करना सिखाएंगे कि डॉग के बारे में आपने 5 वर्ड बोलने हैं, एक व्हाट से रिलेटेड, एक हाउस से रिलेटेड, एक वेयर से रिलेटेड, एक व्हेन से रिलेटेड, जितने भी WH क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड एक 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 वर्ड बोलना है, वर्ड को लिखना सिखाना है। और धीरे धीरे उन वर्ड्स के साथ साथ हम सेंटेंस भी डाल सकते हैं, ताकि 5 लाइन का 6 लाइन का एक हमारा पैराग्राफ हो जाए। यस, नेक्स्ट 4th स्टेप आता है हमारा फंक्शनल राइटिंग का। जो राइटिंग हम सीख रहे हैं, अभी तक की हमने जितनी प्रैक्टिस करी, उसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। राइटिंग फॉर एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा में लिखने की जरूरत हमें कहाँ कहाँ पड़ सकती है, और उसमें हम मीनिंगफुल राइटिंग किस तरह से कर सकते हैं। जैसे शॉपिंग लिस्ट, तो हमें अपने बच्चे को धीरे धीरे सिखाना है कि जब हम सामान लेने जाएंगे तो हम अपनी शॉपिंग लिस्ट बना के लेके जाएंगे। ठीक, आपको 4 आइटम्स लेने हैं, तो आप अपनी लिस्ट नंबर्स डाल करके 1 to 4 नंबर्स डालिए, उसके आगे लिस्ट बनाइए। फिलिंग फॉर्म्स, धीरे धीरे हम फॉर्म्स को फिल करना सिखाएंगे। राइटिंग आती है बट फॉर्म फिल करने में मेरे बच्चे को डिफिकल्टी होती है, कहाँ कैप्स में लिखना है, बॉक्सेस बने होते हैं, बॉक्स में अलग अलग लेटर लिखना है ना। सो हम धीरे धीरे इसकी भी प्रैक्टिस कराएंगे। स्कूल का फॉर्म है, बैंक का फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बहुत सारे टेम्पलेट्स गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, इस तरह से कि आपने टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया और वो बड़े साइज के होते हैं, उतने छोटे नहीं होते हैं। हम अपने बच्चे के लिए जो फॉर्म का टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, उसके बॉक्सेस का ध्यान रखेंगे कि वो बड़े साइज के हों, ताकि वो उसमें ढंग से लिख पाए। धीरे धीरे हम उन बॉक्सेस को छोटा करते जाएंगे। जो रियल लाइफ के फॉर्म होते हैं उनके बॉक्सेस बहुत छोटे होते हैं। प्लानिंग एंड रिमाइंडर्स, अपनी लाइफ के अपने डे टू डे लाइफ की प्लानिंग करना, रिमाइंडर करना कि अच्छा ठीक है, आज वेंसडे है और मंडे वेंसडे फ्राइडे मैं स्केटिंग पे जाता हूँ, तो मैं अपने कैलेंडर पे मंडे वेंसडे फ्राइडे को स्केटिंग मार्क कर सकूं, मैं देख सकूं। ट्यूसडे थर्सडे मेरी आर्ट की क्लास होती है, तो मैं अपनी आर्ट क्लास का रिमाइंडर लगा सकूं। अगर हम फोन यूज करते हैं तो फोन पे रिमाइंडर, अगर बड़ा बच्चा है फोन इंडिपेंडेंटली यूज करता है तो हम फोन पे रिमाइंडर लगाना। अदरवाइज हम टू डू लिस्ट कि आज की हमारी लिस्ट क्या है, आज मुझे मॉर्निंग में स्कूल जाना है, लौट के आके मुझे सारे कपड़े वॉश में डालने हैं, उसके बाद मुझे इवनिंग में स्केटिंग पे जाना है, एंड सो ऑन। इस तरह के रिमाइंडर रोज रोज अपनी टू डू लिस्ट लगाकर अपने रजिस्टर में लगाना कि आज का मेरा प्लानिंग क्या है। नोट्स एंड मैसेजेस, किसी को बर्थडे पे मैसेज करना है, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, कोई मैसेज मम्मा को लिख कर देना है, मम्मा ने कोई मैसेज लिखकर अगर फ्रिज पर चिपका दिया है तो मैं उस पर्ची पर ध्यान दे पाऊं कि इस पे क्या लिखा हुआ है, मम्मा ने कुछ तो लिखा हुआ है, ऐसे ही नहीं निकल जाए कि अगर फ्रिज पे कोई नोट स्टिकी नोट चिपका हुआ है तो दैट मीन उस पे कोई चीज लिखी हुई है, मुझे उसे पढ़ना है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को रीड करना, उनको लिखना, लेबल्स एंड साइन को राइट करना, किचन में जो सामान रखा हुआ है उसमें अलग अलग लेबल्स लगाना कि ये शुगर है, ये इसमें सॉल्ट रखा है, इसमें टी रखा है। इस तरह की जो राइटिंग है वो हमारी फंक्शनल राइटिंग है, जिसको हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। और इस तरह की छोटी छोटी राइटिंग एक्टिविटीज कराकर हम बच्चे को बच्चा खुशी खुशी सीख भी जाता है इस तरह की राइटिंग। यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल पे आप जो देख रहे हैं। सो राइटिंग के लिए हमने ये चीज देखी कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, किस तरह हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह हम आते हैं रीडिंग पर। रीडिंग और राइटिंग बहुत ज्यादा हद तक की आपस में कनेक्टेड रहती हैं, ठीक। तो जो जैसे जैसे स्टेप्स हमारे राइटिंग के बढ़ते जाते हैं, वैसे हमारे स्टेप्स जो हैं वो रीडिंग के भी बढ़ते हैं। तो रीडिंग की भी कुछ स्टेजेस हैं, जैसे प्री रीडिंग स्किल,
वर्ड रिकॉग्निशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड फंक्शनल रीडिंग। आपने अभी तक की सारे एरियाज में देखा है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो राइटिंग है, सब में हमारी 4 स्टेजेस हैं। ठीक, इन 4 स्टेजेस पे ध्यान, सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेज है वो प्री वाली है। ठीक, अगर हमने प्री वाली स्किल पर बहुत सारा काम कर लिया तो धीरे धीरे आगे की स्टेज स्मूथ हो जाती है। हमसे कई बार ऐसा होता है कि हम जो फर्स्ट स्टेज है उस पे समय कम देते हैं और जल्दी से नेक्स्ट स्टेज पे हम फॉरवर्ड हो जाते हैं कि बच्चे ने जैसे ही आइडेंटिफिकेशन सीखा हमने वैसे ही ट्रेसिंग शुरू करा दी, बच्चे ने जैसे ही पॉइंट करना सीखा हमने वैसे ही उसको पढ़ने के लिए इंट्रोड्यूस करा दिया। तो हमको समय देना है, प्रैक्टिस करानी है बच्चे को, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करानी है आगे बढ़ने के लिए। प्री रीडिंग स्किल जो स्टेज है उसमें क्या क्या किस चीज पर हमें फोकस करना है, ये फाउंडेशन है, हमारी रीडिंग स्किल की फाउंडेशन है। और बच्चे के रीड करने से पहले हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना है, वो विजुअल अटेंशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, विजुअल डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि नहीं, कि ये लाल लाल चीजें अलग जाएंगी, ग्रीन ग्रीन सामान जो है वो अलग बास्केट में जाएगा, ये सारे टमाटर हैं और ये सारे सेब हैं, 2 लाल चीजों में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मैच सिमिलर चीजों को मैच कर पा रहा है कि नहीं, और डिफरेंट चीजों का सॉर्ट कर पा रहा है कि नहीं, पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, कि एप्पल, बॉल या 2-3 चीजें अगर रेड हैं तो वो सिमिलर तो उसको नहीं लग रही है, सारी चीजें एक जैसी तो उसे फील नहीं हो रही है। अगर कोई व्हाइट चीज है, अगर व्हाइट ही कॉटन है और व्हाइट ही क्लाउड की पिक्चर है तो वो दोनों को कॉटन या दोनों को क्लाउड तो नहीं बोल रहा है। लिसनिंग स्किल, आपकी बात को सुनकर कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। आपने 3 पिक्चर्स रखी और बोला पॉइंट एप्पल या पॉइंट हाउस या पॉइंट हॉर्स, और उसने बिना सुने बिना सोचे समझे जो पिक्चर उसके पास में थी वो उसने पॉइंट कर दी, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो लिसनिंग स्किल, वो लिसन करके कितना कॉम्प्रीहेंड कर रहा है और कॉम्प्रीहेंड करके कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है। वोकैबुलरी डेवलपमेंट, रोज हमारे आसपास की चीजों का आइडेंटिफिकेशन उसको कितना है, कि ये बेड है, ये सोफा है, ये अलमीरा है, ये बॉटल है, ये चश्मा है, ये शूज है, इसका आइडेंटिफिकेशन, जितना ज्यादा हम आइडेंटिफिकेशन कराएंगे बच्चे को उतनी ज्यादा उसकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी और उसी वर्ड्स को यूज करके उसकी आगे चल के रीडिंग भी एनहांस होगी। बुक हैंडलिंग स्किल, क्या वो पेजेस को टर्न कर पा रहे हैं, बुक सीधी है या उल्टी है, सीधी है, उल्टी है, आगे से देख रहे हैं कि पीछे से देख रहे हैं, पेजेस एक एक पलट रहे हैं कि नहीं पलट रहे हैं, है ना, क्या सारे पेजेस एक साथ घुमाए दे रहे हैं। तो बुक हैंडलिंग स्किल कितनी है। लेफ्ट टू राइट ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट, या मैं लेफ्ट टू राइट, एक्सक्यूज मी, मैं पानी पी लूं। या तो हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं या अप टू डाउन चलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कि हमें जो रीड करना है, क्योंकि रीडिंग सिखाने के लिए हमें लेफ्ट टू राइट, हमारी आईज जो है वो लेफ्ट टू राइट चल रही है कि नहीं चल रही है। बहुत सारी एक्टिविटीज हम इसीलिए कराते हैं, हम नंबर सीक्वेंसिंग कराते हैं कि लाइन से नंबर्स लगाओ, लाइन से अल्फाबेट्स लगाओ, सो दैट बच्चे को ये पता हो कि ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। सो सीक्वेंसिंग एक्टिविटीज, जिससे हम बच्चे की इस स्किल पर काम कर सकते हैं कि वो लेफ्ट टू राइट ट्रैकिंग करना सीखे, ताकि आगे चल के जब वो रीड करे तो वो उसी सेंटेंस को रीड करे। ऐसा ना हो कि लास्ट वाला वर्ड पहले पढ़ लिया, उसको वर्ड सारे आते हैं क्योंकि उसको वर्ड रिकॉग्निशन है, लेकिन उसकी सीक्वेंसिंग नहीं आ रही, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले मुझे दिस पढ़ना है, फिर इस पढ़ना है, फिर आ पढ़ना है, फिर बॉल पढ़ना है। मे बी वो दिस, बॉल, इज, आ, ऐसे भी बच्चे हैं जो इस तरह से रीड करते हैं कि जो वर्ड दिख गया वो मैंने रीड कर लिया, लाइन से नहीं, वर्ड सारे रीड करे लेकिन लाइन से नहीं रीड करे। ठीक है, तो इन चीजों पर भी हमें काम करना है। नेक्स्ट, तो प्री रीडिंग स्किल पे हमें इन सारी एरियाज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर आप 3 वीडियोस देख रहे हैं। पहले में बच्चा सॉर्ट कर रहा है, शेप सॉर्टिंग कर रहा है, दूसरे में कलर सॉर्टिंग कर रहा है और तीसरे में बिग एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सॉर्ट कर रहा है 2 बास्केट में। तो ये सारी जो स्किल्स हैं ये हमारी प्री राइटिंग स्किल्स हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड रिकॉग्निशन। यस,
वर्ड रिकग्निशन, हम जब हम रीडिंग पर काम कर रहे होते हैं तो सेकंड स्टेज हमारी वर्ड को रिकग्नाइज करना है। प्री रीडिंग स्किल तो हमारी अचीव हो गई, मैचिंग, सॉर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजों पे। अब हम आ गए हैं वर्ड रिकग्निशन। अब वर्ड पे जब हम काम करना शुरू करते हैं तो लेटर आइडेंटिफाई कर रहा है बच्चा, रिकॉग्नाइज कर रहा है कि नहीं, अल्फाबेट की उसको नॉलेज है कि नहीं है, लेटर के साउंड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम ए बोल रहे हैं तो उनको अगर वो ए कैपिटल ए लिखा है तो उसको वो ए रिकॉग्नाइज कर रहा है कि नहीं। और अगर हम ए बोल रहे हैं, ब बोल रहे हैं, तो क्या वो उसको स्मॉल बी आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं, उनके साउंड्स पता है उसको कि नहीं। साइट वर्ड्स, दिस, इज, एम, द, व्हाट, व्हेन, ऐसे बेसिक साइट वर्ड्स वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं। इन्वायरमेंटल प्रिंट, नेक्स्ट, जैसे कि ऐसी चीजें जो हमारे इन्वायरमेंट में रिटन चीजें हैं, जैसे स्टॉप का साइन हमेशा ज्यादातर रेड बोर्ड पे होता है, एग्जिट का साइन ज्यादातर ग्रीन बोर्ड पे होता है, टॉयलेट में बॉय और गर्ल बने होते हैं। तो ऐसे विजुअल सिंबल्स जिसमें रिटन लिखा हुआ है, अगर उनको वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, कि दरवाजे पर पुश लिखा हुआ है तो हमें धक्का देना है, पुल लिखा हुआ है तो हमें अपनी तरफ खींचना है, पी लिखा हुआ है और पार्किंग लिखा हुआ है तो दैट मीन कार पार्क होनी है। ऐसे एग्जांपल्स, इन वर्ड्स के रिकॉग्निशन पर हमको इस स्टेज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है कि यहाँ पर मेरे बच्चे को वर्ड्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, जेड के ऊपर डी है, डी क्या है, ग्रीन, उठाओ ग्रीन लगाओ। जेड के ऊपर डी, डी इज ग्रीन, ग्रीन। बहुत बढ़िया। यहाँ पे जैसे बच्चा क्या कर रहा है, उसने उसको अल्फाबेट पहचानने आते हैं, उसको कलर के नाम पहचानने आते हैं। अब इसको थोड़ा सा फंक्शनली चेंज कर दिया है। जेड के ऊपर डी है, डी क्या है, और इसको इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी है। हम हमेशा ऊपर से नीचे काम करते हैं, अब यहाँ पे नीचे से ऊपर, क्योंकि उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स लगाने हैं। डी है, जेड है, क्यू है, और सबके कलर कोड दिए हुए हैं। अब बच्चे को पहचानना है कि अच्छा डी व्हाइट था तो उसने व्हाइट ब्लॉक लगाया, डी के ऊपर जेड था, जेड ग्रीन है तो ग्रीन ब्लॉक लगाना है। यहाँ पर ये स्पेलिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं, है ना, इसमें स्पेलिंग क्रिएट करनी है और करेक्ट स्पेलिंग को चूज करके लिखना है। करेक्ट स्पेलिंग को चूज करके लिखना है, और जब हमारी स्पेलिंग करेक्ट होगी तब हमें उस वर्ड को स्पेल भी करना है। तो इस तरह के गेम हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। हम जैसे ट्रेडिशनल तरीके चले आ रहे हैं कि हम बुक और कॉपी की हेल्प से ही रीडिंग सिखाएंगे, बुक और कॉपी की हेल्प से ही राइटिंग सिखाएंगे, उससे थोड़ा हटकर हमें उनकी उसको एक्टिविटी बेस करना है, प्ले बेस करना है, गेम बेस करना है, इंटरेस्ट डेवलप करना है कि बच्चे ने जो सीखा है उसको वो और कितना ज्यादा यूज कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज आती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मैंने जो सुना है उसे मैं कॉम्प्रीहेंड कर सकूं, जो पढ़ रहा हूं उसको मैं कॉम्प्रीहेंड कर सकूं। ठीक है, जो भी सामने लिखा हुआ है उसका मतलब समझ सकूं। तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी रीड, हम क्या पढ़ रहे हैं उसका मतलब समझना। उसके लिए WH क्वेश्चंस पर हम इस स्टेज पे आकर हम WH क्वेश्चंस पर वर्क करना शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें बिल्कुल भी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस नहीं पूछना है। जब हम शुरू की 2 स्टेजेस पार कर लें और हमें पता चल जाए कि हाँ मेरा बच्चा इन 2 स्टेजेस पे हम काम कर चुके हैं, अब मेरा बच्चा WH क्वेश्चंस के लिए रेडी है, तो तब हमें WH क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। आइडेंटिफिकेशन के तुरंत बाद हमें एप्पल हमने आइडेंटिफाई करा और फिर हम पूछने लगे व्हाट इज दिस नहीं करना है। ठीक है, तो हमें WH क्वेश्चंस के लिए पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। इस लेवल पे आकर जब वो कॉम्प्रीहेंशन को समझ सके, जब वो बोली हुई बातों को समझने लगे, लिखी हुई बातों को कुछ उसकी वोकैबुलरी ऐसी हो कि लिखे हुए वर्ड्स को वो अंडरस्टैंड करने लगे कि हाँ ये बैट लिखा है, ये कैट लिखा है, ये बेड लिखा है, ये बॉटल लिखा है, उसके बाद हम WH क्वेश्चंस पर काम करेंगे, सीक्वेंसिंग पर काम करेंगे कि एक करेक्ट ऑर्डर में। आपने कोई स्टोरी सुनाई कि एक बच्चा था, वो जो 2 बच्चे थे, वो दोनों उन्होंने रन किया, रेस करी, एक पीछे रह गया और एक विन हो गया, स्टोरी फिनिश। और इसी स्टोरी की 4 पिक्चर्स आपने बना दी। ठीक,
इतनी सी स्टोरी सुनाई, अब मैंने कहा इस स्टोरी को सीक्वेंस में लगाओ। ठीक, बच्चे ने करेक्ट सीक्वेंस में लगा दिया। एक मंकी था, उसने बनाना ओपन किया और खा लिया, फिर छिलका उसने डस्टबिन में फेंक दिया। इसको आपने 4 पिक्चर्स दे दी जंबल करके, इनको सीक्वेंस में लगाओ। तो सीक्वेंसिंग इवेंट्स, पहले छोटे छोटे इवेंट्स को सीक्वेंस करना, धीरे धीरे 4 सेंटेंसेस के बाद धीरे धीरे उस स्टोरी को एक पैराग्राफ की स्टोरी में बनाकर सीक्वेंस करना, और धीरे धीरे एक पेज की, और फिर धीरे धीरे बड़ी स्टोरी। तो सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिडिक्टिंग, वी थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट, क्या अगला क्या होने वाला है, अगली चीज क्या होने वाली है। ऐसी एक्टिविटीज जिसमें हमको व्हाट कम्स नेक्स्ट, जैसे पानी डाला और प्लांट में हमने बीज बोए, पानी डाला, अब क्या होगा, अब प्लांट निकलेगा उसमें से। क्या बच्चा इसका आंसर कर पा रहा है? क्या इतनी उसका ब्रेन जो है वो इतना प्रोसेस कर पा रहा है, उस चीज को वो कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है कि हाँ अब जब हमने बीज बोया है तो दैट मीन उसमें से प्लांट ग्रो होगा, नेक्स्ट ये होने वाला है। हमने खाना खाया और पिक्चर्स बना दी, या रिटन में अगर बच्चा रीड कर रहा है तो खाना खाया, प्लेट डर्टी, व्हाट नेक्स्ट, अब प्लेट वॉश का टाइम है। ठीक, तो वो उसे फिल करना है कि अब प्लेट वॉश होनी है। ठीक, बलून ब्लो किया, व्हाट नेक्स्ट, अब फूट जाएगा जब बहुत ही ब्लो करते चले गए। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस को वो कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है? क्या उसका ब्रेन इस चीज के लिए रेडी है कि वो इतना प्रोसेस करके, सोच करके, थिंक करके कि इसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है, उसका आंसर दे। आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया, वी फाइंड व्हाट आउट द स्टोरी इज मोस्टली अबाउट। किसी स्टोरी के बारे में जो हम कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, पूरी स्टोरी सुनने के बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनाते हैं ना, क्या मेरा बच्चा उस स्टोरी के मॉरल को समझ पा रहा है? जो आपने 4 लाइन की स्टोरी सुनाई है उसके मॉरल को समझ पा रहा है? उस पर हमें काम करना कि इसमें मैंने कहा क्या, इसमें मैंने बताया गया। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, वी रीड एंड फॉलो स्टेप्स केयरफुली। आपके बोले हुए इंस्ट्रक्शंस, आप पेज नंबर 12 का पैराग्राफ 2 ओपन करो, क्या वो इतना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है? क्या आपकी बोली हुई बात को, आपके इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करना है? इंग्लिश की बुक निकाल के लेके आओ और पेज नंबर 2 ओपन करो। आज हम ये वाली स्टोरी पढ़ेंगे। क्या वो इतने चीज को प्रोसेस कर पा रहा है? तो अगर ये सारी चीजों पे, ये जो हमारा 3rd स्टेज है, हम इन्हीं एरियाज पर इन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट मैम, रीड सेक्शन, रीड and we like making cookies together. We boil and grandma mixes David यस। तो यहाँ पर आपने देखा कि पेंसिल की हेल्प से हम एक एक वर्ड को पॉइंट करते चल रहे हैं, सो दैट मेरा बच्चा खो ना जाए, है ना, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी वो लाइंस लिखी हुई हैं। जैसे हम लोग मैगजीन्स पढ़ते हैं, बिल्कुल उतने ही उसका फॉन्ट है अल्फाबेट्स का और उसका सेंटेंसेस का। तो हमें थोड़े हेल्प की जरूरत पड़ती है। हम या तो बड़ा फॉन्ट निकाल सकते हैं कि अगर हमें पॉइंट ना करना पड़े, अगर छोटा फॉन्ट है तो हम साथ में पेंसिल से पॉइंट करते चल रहे हैं, ताकि मेरे बच्चे को लेफ्ट टू राइट पढ़ने वाली स्किल में हेल्प मिले, और उसका लेटर आइडेंटिफिकेशन है, वर्ड आइडेंटिफिकेशन है, तो वो इजिली पढ़ पा रहा है। नेक्स्ट एंड 4th स्टेज आती है रीडिंग के, उसमें फंक्शनल रीडिंग, रीडिंग फॉर एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा में पढ़ने, कहाँ पे रीडिंग की जरूरत हमको पड़ सकती है, कितना, जब हम खुद अपने आप से पढ़ लेते हैं तो हम कितना अपने आप को इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट फील करते हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस में कहाँ कहाँ हमको रीडिंग की जरूरत पड़ती है और किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। जी नेक्स्ट। सो इस 4th स्टेज के जो हमारे फोकस एरियाज हैं वो क्या क्या है? रीडिंग वर्ड, label and sentences, understanding important information, using reading in everyday task, becoming more independent every day, making good choices with reading. अब यहाँ पे जो रीडिंग, जो हमारी फंक्शनल रीडिंग जिसको हम कहते हैं, वहां पे जो मेन एरियाज हैं कि क्या मेरा बच्चा जो है उसको मुझे ये सिखाना है कि जो ग्रोसरी है, जिसमें जो हम सामान लेने जा रहे हैं, जो भी आइटम आपने खरीदा है उसके पीछे क्या प्राइस पड़ा हुआ है। आपको जिस कंपनी का बिस्किट चाहिए, क्या आपने 10 बिस्किट्स में से वो वाला बिस्किट पढ़ के उठाया,
क्या अगर हम मेडिसिन खरीद रहे हैं वहां पर जो पीछे उसमें एक्सपायरी लिखी हुई है वो हम रीड करना सीखते हैं। इन चीजों को हम फंक्शनल रीडिंग में लेकर आते हैं। जो शॉपिंग करने जा रहे हैं, फूड के लेबल्स हैं, क्या वो एक्सपायर्ड तो नहीं हो गया है, उसका टाइम तो आउट नहीं हो गया है, एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई है। हम अगर बाहर जा रहे हैं तो ट्रेन का टेबल, ट्रेन की चार्ट क्या है, कितने बजे ट्रेन आने वाली है, ट्रेन अगर लेट है तो वो कितनी देर लेट है, अगर कितनी देर लेट है तो हम घड़ी में देख के पता लगा सकें कि अभी हमें कितनी देर इंतजार करना है। तो रीडिंग, नंबर्स को घड़ी में आइडेंटिफाई करना, कैलेंडर्स, डेट, अगर किसी का बर्थडे आने वाला है तो वो कितने दिन के बाद बर्थडे है, उस बर्थडे पे मैं क्या प्लान करूंगा। बिल्स, मैं खाने खाने बाहर गया तो वहां पे अगर कोई बिल दिया गया है तो उस बिल का कैलकुलेशन कितना हुआ है, टोटल मुझे कितना पे करना है, कोई चीज कितनी की है, उसका दाम क्या है, प्राइस टैग रीड करना, सेफ्टी साइंस रीड करना कि अगर मैं मॉल में गया हूं और वहां पे वेट फ्लोर का साइन लगा हुआ है तो दैट मीन मुझे उधर से नहीं जाना है वरना मैं फिसल जाऊंगा, है ना। जो बेसिक सिंबल्स होते हैं, टॉयलेट का सिंबल है, बॉयज टॉयलेट है, गर्ल्स टॉयलेट है, वेट फ्लोर का सिंबल है, स्टॉप का सिंबल है, डेंजर का सिंबल है, इस तरह के सिंबल्स को रीड करना, रेसिपीज को रीड करना कि अगर हम यूट्यूब पे या शॉर्ट में देख रहे हैं तो रेसिपीज के क्या स्टेप्स हैं वो अगर मम्मा ने लगा दिए हैं कि कहीं सामने, तो हम इंडिपेंडेंटली खाना खुद बना सके, हम चाय खुद बना सके, मैगी खुद बना सके, अगर मम्मा ने 4 सिंबल्स लगा के मुझे दे दिए हैं। तो इन चीजों पर हम फोर्थ जो हमारी स्टेज होती है, यहाँ पर हम फंक्शनल रीडिंग पर काम करते हैं। ऐसी रीडिंग जो बुक से बियॉन्ड है, जो कहीं बुक में नहीं मिलेगी, जिसमें कोई स्टोरी नहीं है, जिसमें कोई कहानियां नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे डे टू डे लाइफ में, जिंदगी में जो हम चीजों को यूज करते हैं उन चीजों पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको रीड करना और उन लिखे हुए वर्ड्स का मतलब समझना, ये है हमारा असल कॉम्प्रीहेंशन। तो रियल जो लाइफ में हमारी जिंदगी में जो हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं वो फंक्शनल रीडिंग यहीं पे यूज होती है। जैसे यहाँ पे ये मेन्यू कार्ड रीड कर रहा है, क्या खाना है उसको, है ना, तो अपनी पसंद की डिश ऑर्डर करना कि क्या चीज खानी है, तो मेन्यू कार्ड रीड करना, प्राइस टैग रीड करना, ये सारी एरियाज पर हम फोर्थ स्टेज पर काम करते हैं। लेकिन फोर्थ स्टेज पे आने के लिए पीछे का हमें सब छोड़ नहीं देना है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। ये यहाँ पे मैगी की रेसिपी लिखी हुई है और ये मैगी बना रहे हैं। इंडिपेंडेंटली वो इसीलिए बना पा रहे हैं क्योंकि उनको वो जो लिखा हुआ बोर्ड पे है वो समझ में आ रहा है, उसे वो रीड कर पा रहा है और रीड करके उसे वो कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है, इसीलिए उस कॉम्प्रीहेंशन को वो रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहा है। तो रीडिंग के फोर्थ स्टेज पे पहुंचने के लिए लेटर आइडेंटिफिकेशन, विजुअल्स, सारे ये साइट वर्ड्स, फोनिक साउंड को मिलाकर ब्लेंड करने से बने हुए वर्ड, वो सारी स्टेजेस पार करनी पड़ी है, तब हम फंक्शनल पर आ पाए। मेरी तरफ से रीडिंग एंड राइटिंग के लिए इतना ही। अभी मैं वंदना मैम को ओवर कर रही हूँ, सो ओवर टू यू। जैसा कि वंदना मैम ने पहले ही बताया था, 4 स्टेप हैं हर एरिया के, उन्हें ध्यान रखना है, लर्न करना है, पहले सीखना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर अप्लाई करना है, उसका एप्लीकेशन करना है, और फिर ही इंडिपेंडेंस हमको मिल सकती है। तो ये 4 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, कोई भी एरिया हो, पहले हम बच्चे को सिखाएंगे, फिर उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस कराएंगे, फिर उसका एप्लीकेशन कराएंगे, जर्नलाइज कराएंगे डिफरेंट एनवायरनमेंट में, उस चीज को उस एक्टिविटी को में बच्चे को पार्टिसिपेट कराएंगे, तब जाके हम फोर्थ स्टेज पे पहुंचेंगे, इंडिपेंडेंट जो स्टेज है। ओके, सो टू यू मैम, थैंक यू। और ये चारों की चारों स्टेजेस, हर एक जो हमने स्टेजेस के अंदर सब स्टेजेस भी थी, अगर आपने नोटिस किया होगा, नंबर अगर है, बिल्डिंग नंबर स्किल, उसके अंदर बहुत सारी सब स्टेजेस है, आइडेंटिफाइंग नंबर, क्वांटिटी, नंबर, वैल्यू। सो एक मैंने आइडेंटिफाई नंबर अगर लिया तो पहले लर्न करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, फिर एप्लीकेशन करना है, फिर इंडिपेंडेंस आएगी। तो हर एक जो सब स्टेज है उस पे ये 4 स्टेप लागू होते हैं।
तो अब अगर आपने अपने बच्चे को फाइन मोटर पर काम कर रहे हो, तो फाइन मोटर में क्या है, सबसे पहले तो हमें पेंसिल पकड़ना सिखाना है ना। अगर आपने पेंसिल पकड़ना ही नहीं, मतलब पेंसिल पकड़ना अगर बच्चे का नहीं हो रहा है तो वो राइटिंग नहीं आएगी। अगर उसका पेंसिल पर कंट्रोल नहीं आ रहा है तो वो राइटिंग नहीं कर पाएगा। और हम कई बार हमारे से हो जाता है ऐसा कि हम कुछ स्टेप्स को बाईपास जल्दी करने की सोचते हैं कि जल्दी से सीख जाए। जल्दी के चक्कर में क्या होता है, हम उन स्टेप्स को बाईपास कर देते हैं। मोनिका मैम ने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, हर एक जो स्किल आज हमने डिस्कस की, मैथ, रीडिंग और राइटिंग, उसकी एक प्री होती है, प्री स्किल। अगर हमने प्री पर काम नहीं किया, तो प्री पर अगर हमने काम नहीं किया तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो हो नहीं पाएगा, राइट। तो ये हमें बहुत जरूरी है कि हम प्री पर काम करें। प्री वाला जो स्टेप है उसको नहीं छोड़ना आपने। प्री मैथ, प्री राइटिंग, प्री रीडिंग। ऐसे ही जब हम और स्किल की बात करते हैं तो फाउंडेशन स्किल्स की, जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें फाउंडेशन स्किल्स आती है। हम बच्चे के डिजिटल स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें भी जैसे प्री राइटिंग स्किल्स होती है, वैसे प्री डिजिटल स्किल्स होती है। तो वो जो पहला जो बेस है, फाउंडेशन है, उस पर बहुत ज्यादा काम करना है। फाउंडेशन पर अगर हम काम कर लेते हैं तो स्टेजेस फिर जल्दी हम क्रॉस कर लेते हैं। तो जो पहला जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करना, उसको अच्छे से लर्न, प्रैक्टिस, अप्लाई और इंडिपेंडेंट करना बहुत जरूरी है। प्री वाला जो स्टेप होता है। बहुत ही पर्सनल चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब मैं ये पीपीटी बना रही थी, जब मैं प्रेजेंटेशन बना रही थी, तो वीडियोस और पिक्चर्स डालनी थी। तो ये पिक्चर्स और वीडियोस डालते हुए आई हैव रिवाइज्ड माई जर्नी, मेरी खुद की जर्नी मैंने पूरी जी इस प्रेजेंटेशन को बनाते हुए। क्योंकि आपने अगर नोटिस किया होगा, इसमें छोटा छोटा सेक्शन भी था और इसमें बड़ा सेक्शन भी था। तो मुझे जितनी, मेरे पास बहुत ज्यादा वीडियो पिक्चर्स नहीं मिली मुझे, तो जो मुझे मिली वो मैंने इसमें डाली। तो एक बहुत ऐसी स्टेज थी जब हम प्री पर काम कर रहे थे, और एक ऐसी स्टेज भी थी जहां पर हम इंडिपेंडेंट हो गए। तो वो पूरी जो स्टेजेस है वो हमने पर्सनली क्रॉस करी है, उन पर काम किया है, तब जाकर अभी हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए, इतने इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। अभी हम 3 नंबर पर है, अभी हम 4 में कहीं पहुंचे हैं। आई कैन से कि हम 3 और 4 के बीच में हैं। तो वो सारी स्टेजेस करने के बाद, और ये रियलाइज हुआ मुझे अपने बच्चे के साथ काम करने के बाद, और मोनिका मैम ने तो बहुत सारे बच्चों के साथ राइटिंग, रीडिंग पर काम किया है, कि जब तक हम बेस फाउंडेशन पर काम नहीं करते तब तक वो 3 और 4 पर पहुंचना मुश्किल होता है। जब हमने 1 पर अच्छे से काम कर लिया, फिर 2 और 3 और 4 जल्दी आ जाता है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। This advice I am not giving as an educator, but this advice I am giving you to a parent by a parent. एक पेरेंट की तरफ से मैं कोई एडवाइस देना चाहती हूँ कि कोई जो अगर आपका बच्चा सॉर्टिंग, मैचिंग नहीं कर रहा है अभी ठीक से, अगर उसको विजुअल परसेप्शन में कहीं दिक्कत आ रही है, तो उसकी रीडिंग, आप सोचते होंगे ना कि रीडिंग क्यों नहीं कर पा रहा, तो पहले आप उसके पीछे जाइए, उसकी फाउंडेशन पर जाइए हमेशा। अगर आप कहीं भी फंसे हुए हैं, आप, मेरा बच्चा लिख नहीं पा रहा, तो आप बजाय इसके कि वो लिख क्यों नहीं पा रहा है, आप उसका एक स्टेप पीछे जाइए, आपको उसका रीजन वहीं से मिल जाएगा। हो सकता है उसका कंट्रोल ना आया हो सकता है उसको फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही हो सकता है उसकी कोई फाइन मोटर, पिंसर ग्रिप कुछ रह गई है ना। तो हमेशा जहां पर भी आप फंसे, चाहे वो कम्युनिकेशन है, रीडिंग है, राइटिंग है, जहां पर भी आप अटक रहे हैं, एक स्टेप पीछे जाकर देखिए, कोई ना कोई स्टेप हमारा रह गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम हर स्टेप को फॉलो करें, अच्छे से करें। ये स्टेप फॉलो करने से इंडिपेंडेंस आती है। और नेक्स्ट जो स्लाइड है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि Step 1, insert the card. Second 2, enter the pin. फिर select the withdrawal. Enter the amount. Enter amount. हाँ, उसके बाद में collect the cash.
कलेक्ट द कैश, कार्ड लगा के रखो, कार्ड लगा के रखो, हाँ, कलेक्ट द कैश और टेक आउट द कार्ड। ये पहले हमने नंबर सिखाए, फिर हमने डेमो। अब एटीएम कैसे सिखाओगे? एटीएम डायरेक्ट तो नहीं सिखाएंगे। हमने क्या किया, एटीएम का मॉडल, डमी मॉडल बनाया, एटीएम की प्रैक्टिस डमी मॉडल के साथ कराई, सारी स्टेप्स प्रैक्टिस किए, पहले लर्न करें फिर प्रैक्टिस किए। प्रैक्टिस करने के बाद हमने बोला कि अब आप अपने बच्चे को हर बार एटीएम लेकर जाइए। एटीएम पर पहले पेरेंट्स के साथ, फिर इंडिपेंडेंटली, ऐसे 1 2 3 4 स्टेप्स करने से हम फर्स्ट स्टेप से शुरू हुए और 4 नंबर पर आ गए। तो ये था हमारा आज का जो हम बताना चाह रहे थे कि लर्निंग फॉर लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमने बात की कि हम 6 पिलर्स होते हैं लर्निंग फॉर लाइफ के, और कनेक्टिविटी जो है वो इन 6 पिलर्स पर काम करता है और हम करते रहेंगे। और इन्हीं 6 पिलर्स के अराउंड ही हमारी हर बार पेरेंट कनेक्ट सीरीज होती रहेगी, एवरी सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये लर्निंग फॉर लाइफ स्किल्स हम कैसे कराते हैं, हमारी एक लाइफ स्किल रेडीनेस की क्लास होती है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल हम आपको एक स्नीक पिक का ऑफर दे रहे हैं, जिसमें कि अगर आप चाहते हो कि कैसे सिखाई जाती है रियल लाइफ लर्निंग और कैसे हमारे बच्चे कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनते हैं, तो आप 10th 11th और 12th को हम स्नीक पिक ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आप लाइव क्लास हमारी ज्वाइन करके देख सकते हो। आपको साइलेंट आप वीडियो और ऑडियो ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि आप जस्ट एन ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बच्चों की क्लास हो रही होती है उस टाइम पे। तो आप 10 11 12 को आ सकते हैं, क्लास देख सकते हैं। पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मेरे बच्चे रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं। तो हम स्क्रीन करेंगे पहले कि जेन्युइन कॉन्टेक्ट है या नहीं है, तभी अलाउ करेंगे। तो अगर आप चाह रहे हो, आप पेरेंट हो किसी बच्चे के और आप चाहते हो कि देखना चाहते हो कि कैसे लाइफ स्किल सिखाते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम हो। 10th 11th 12th को मैं ये इन्फॉर्मेशन फिर से शेयर करूंगी, और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा जो आपको भरना होगा। आप आ सकते हो, देख सकते हो क्लासेस और कैसे हम सिखाते हैं और कैसे आप सिखा सकते हो, मे भी आपको कुछ हेल्प मिल जाए उससे। इसी नोट पर हम आज का सेशन जो है वो रैप अप करेंगे। आपका थैंक यू सो मच। वी आर न्यू, अभी कनेक्टिविटी 24 जून को ही स्टार्ट हुआ है, 24 जून को हमने स्टार्ट किया था। अभी हमारा 1 महीना 1 मंथ ही हार्डली कंप्लीट है। तो वी नीड योर सपोर्ट, आप सबका सपोर्ट हमें चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, आप सबका कनेक्शन चाहिए। एंड हम करते रहेंगे अपनी पूरी कोशिश उन 6 पिलर्स पर काम करने की, ऑल द 6 पिलर्स जो कि बहुत जरूरी है हमारे बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी लर्निंग के लिए। और आप प्लीज जुड़े रहिए हमसे। हमारा एक अनाउंसमेंट ग्रुप है, उसमें हम सब कुछ अनाउंस करते रहते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं। और नेक्स्ट 5 सितंबर को है नेक्स्ट फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर। तो नेक्स्ट Saturday of September, first Saturday of September is 5th September. We will connect again and we will bring out some another interesting topic that is helpful and that can support parents to make their journey easy. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। एंड आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत नए हैं, बच्चे हैं, अभी हम 1 महीने का बच्चा है। तो आपका फीडबैक हमें बड़ा करने में, ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज आपका फीडबैक दीजिए। यस, please add English subtitles to all your videos when you're uploading it on YouTube, no? Because some of us South Indians are very fluent in Hindi, but not all can. For a pan-Indian presence, I think English subtitles would be very good. thank you. Yeah, please do that.
because these are very insightful videos. But सबको मैं तो बहुत टीवी देखा इसलिए मेरा हिंदी तो अच्छा हो, लेकिन सबका ऐसा नहीं होता ना. Okay, we'll do that. So please share your feedback. Like I said, अभी हम छोटे से बच्चे हैं आपके साथ से, आपके support से. We want to grow and we want to grow with everyone. So thank you so much for joining, and thank you for registering. After this, I will share the registration link for the sneak peek. Please feel if you are interested to watch the sessions. Thank you so much. Thank you, Monica ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.